Good evening to all of you. Once again, I welcome all of you for the day three and the final session on SLR workshop. Thank you so much for your participation for last 2 days. And Salini ma'am has already joined. So Yes, I yes, request ma'am to kindly please take it forward. Thank you so much. yes, yes. Thank you. Right. Good evening to one and all present here. And let me start my today's session. Bye, bye. Good, good evening. So let me share my screen. Okay. So I hope my screen is visible to all of you. Is my Yes, screen ma'am, it's visible? visible, ma'am. Okay, okay. So let me have a recall of what we did yesterday, a brief outlay. So what we did was we talked about how to write a paper using SLR, है ना? So these were the things that can be done in the data analysis part. So we talked mainly yesterday about the data analysis part, right? So Smay, I told you what all things can be written in data analysis part. So these are the things like year of publication, country of publication, theories used in the paper, most cited journals, most cited publication house, keyword analysis, data use, tools and techniques, context. So this is what you can do into your डेटा एनालिसिस पार्ट, है ना? ये क्लियर था सभी को? फिर उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट द एडीओ मॉडल. एडीओ मॉडल का एग्जांपल दैट आई गेव यू वाज अबाउट द एंटीसीडेंट, decision and outcome, right? So I gave you an example onto this. This was clear till this point, right? So let's proceed ahead with the TCCM model. Yesterday somebody was asking me, so what is a TCCM model? So let me show you. Like there are two models. That is, one is ADU model and another is the TTCM framework, right? So this is also very important when we write our paper with the help of SLR, systematic literature. Please close your mics, please. Surbhi Chaudhary, Hanji, thank you so much. Okay, so what I told you was like data analysis is there, right? So data analysis may these are the fields that can be analyzed in the data analysis part of SLR, right? Beyond this, there are two frameworks that also you can use in your SLR paper. One is the Hello, ADO model. hello. Hanji, Ma'am, sorry to yes. disturb you in between. Just want to know, ma'am, for this regarding this ADO model, if anybody wants to do the data analysis, on an average, how many pages of data analysis we should do if we refer this ADO model, or if we refer all Let these? Yeah, ma'am. let me give you an example onto this. It is not about the papers. It is about how much you have written. Let me take you to one of my papers. Yeah, ma'am. This is my final manuscript. Let me show you how long that we have written. Just look at this. Like these are the antecedents. Can you see to this? Let me increase the font size. यहाँ पर हमारे we have three main antecedents, that is the financial factors. So जो आपकी antecedents हैं उसमें 4 to 5 lines about each factor, about each variable or construct that you have taken. Let me take you to my this thing. एक मिनट मैं आपको एक और के लिए लेके दिखाती हूँ मैं अभी आपको. एक मिनट. This is one paper. Tables maybe I want to show you. एक minute, just a minute. Give me a minute. This is a Prisma model, results of Scopus, impact and investment.
ओके, ये नहीं अभी हो पा रहा, एक मिनट मैं आपको इसमें ही दिखा देती हूँ, लेट मी टेक इट, जस्ट गिव मी अ मिनट. Let's say this is one of our papers that we are doing it. So what we have done is like, look, these are the antecedents. Matlab, these are the antecedents. So what you have to do is you have to start like this. This is first antecedent. So हमारे यहाँ 3 antecedents हैं. So 4 to 5 lines on each of the antecedents that you have to write like this. Financial factors, social factors, and self-actualization factors. उसके बाद you have to talk about the second important aspect, that is this decision part, right? So each of the decision, like service quality में each of the decisions we have to talk about around 2 to 3 lines for each one of them, right? So for each of the decisions you have to write 2 to 3 lines. So maybe मैंने शायद ज़्यादा लिखा उधर, like यहाँ पे financial factors है, तो just look at this is the decisions part of the financial factors. So this is the antecedent and this is the decisions of it. So for each of the decision you have to write the 2 to 3 lines, right? So this is also important. In-text citation is also important. Please try to give the latest in-text citation, राइट? तो इस तरह से सेकंड फिर आप देख सकते हैं ये अभी फर्स्ट का खत्म हुआ है, ये सेकंड का स्टार्ट हुआ है. दिस इज द सेकंड एंटीसीडेंट ऑफ माइंड, उसके अंडर ये डिसीजंस चल रहे हैं उसके. जस्ट लुक एट दिस 2 to 3 लाइंस, ये ज्यादा लंबा लिखा हुआ है. इवन इफ यू राइट 2 to 3 लाइंस दैट इज ओके. नाउ दिस इज द थर्ड फैक्टर, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फैक्टर, और उसके अंदर 2 to 3 लाइंस. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर ईच ऑफ द डिसीजन पार्ट. ईच ऑफ द डिसीजन पार्ट के अंदर जो भी है उसके अंदर इतना इतना भी अगर आप लिखोगे दैट इज मोर देन इनफ, राइट? सो आउटकम्स, दिस इज द लास्ट पार्ट. सो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइक इट्स फाइनेंशियल फैक्टर्स, इसके अंडर जो भी आ रहा है. सो ये मैंने काफी बड़ा लिखा हुआ है. आई एम सेइंग दिस, बट आप इससे थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो, राइट? तो मतलब आपको व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज लाइक, आपके पास जैसे ये है एंटीसीडेंट्स आपके जितने भी हैं, 3 to 4 lines for each of the antecedents and 2 to 3 lines for each of the decisions, and same with the outcomes. So it depends on, और ये भी तो डिपेंड करता है ना. अब जैसे ये वाला जो मेरा पेपर था, इसके अंदर हमारे सिर्फ 3 एंटीसीडेंट्स थे, लेकिन अब ये जो पेपर मैं लेटेस्ट पेपर है जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ, तो इसके अंदर ज्यादा है एंटीसीडेंट, तो ये ज्यादा पेजेस को कवर करेगा. आई होप इट इज क्लियर. Yes, Yes, ma'am. it's clear, ma'am. Thanks. हाँ. So for each you have to write. So this is very very important, right? So this is what is about the ADO model, right? So there is another framework that you can also work upon. That framework is called as the TCCM framework. This is about the ADO model. Next is the TCCM framework. T is for theory. Then is the one is the context. मैं अभी बताती हूँ क्या होता है इसका. One is the context. Another is the theory, context. Last is the methodology. Characteristics. Yeah. Another is the characteristics. And last is the methodology. मतलब इस बेसिस पे भी दिस इज अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग, दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग अ फ्रेमवर्क इन योर पेपर, ताकि आपके पेपर में इट बिकम्स मोर इम्प्रेसिव. मतलब आपके पेपर में थोड़ी जान अगर लानी है तो आई थिंक तो एडीओ फ्रेमवर्क, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पेपर को इट गिव्स अ मोर स्ट्रेंथ, राइट? सो यू मस्ट डू इट. एक मेटा एनालिसिस भी होता है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पेपर. वो भी काफी स्ट्रेंथ देता है आपके पेपर को. दैट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट हियर राइट नाउ, बट we will be talking about the ADO model and the TCCM framework. What is the theory? So let me take you to this paper. यहाँ पर इन्होंने बताया है theory में क्या आता है. Theory development. This is the TCCM framework, right? अब हम क्या
क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द TCCM फ्रेमवर्क। TCCM फ्रेमवर्क पे फर्स्ट इज द थियोरी डेवलपमेंट, राइट? तो जितनी भी थियोरीज हैं, ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, ये जो मैंने आपको कल टॉपिक दिखाया था, ये उसी का पेपर है। तो उसके अंदर कौन कौन सी थियोरीज हैं जो यूज करी गई है ना, उसके बारे में यू हैव टू टॉक अबाउट। सो दिस इज द थियोरी डेवलपमेंट, और उसके बेसिस पे अगर आप कोई एक थियोरी भी डेवलप कर सको, सो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द T part, that is the theory, right? So this is the T part, that is the theory development. Next comes the context. Context का मतलब, I want each one of you to read these lines. Please read these lines. Okay. I think everybody must have read it. What have you understood from this? कोई बताएगा मुझे? I want somebody from the participants to talk about it. Moreover, it was noted that most of the research conducted in the context of firms from developed countries such as European Union nations and North America. किसके context में studies करी गई हैं, उसके बारे में यू हैव टू टॉक अबाउट। जो आपने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ये जो टॉपिक लिया है, जिसके ऊपर आपने स्टडी किया है, वो मोस्टली उसमें किस कंटेक्स्ट में ज़्यादा स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया है। तो ये क्या बता रहा है इसमें? फर्म्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूरोपियन यूनियन नेशन एंड नॉर्थ अमेरिका। इसमें सबका तो बताना ही बताना है आपको। यू हैव टू टॉक अबाउट ईच वन ऑफ द टेक्स्ट, कि किसने कौन कौन से कंटेक्स्ट दिए, और फिर उसके बाद आपने समरी देनी है कि बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंसिंग टॉपिक है लाइक दिस, तो इसमें किस कंटेक्स्ट में ज़्यादा बात करी गई। सो दिस इज व्हाट इज द कंटेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में अगेन यहाँ पे एंटीसीडेंट एंड आउटकम विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सो व्हाट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट? theory development. Let me repeat this again. What is your TCCM framework? T stand for the theory development. कि कौन कौन सी theories है, you have to give a table, and if you can develop some theory for it as well, so you can develop some framework for it. Next is the context. Context means कि किसके context में ज़्यादा बात की गई है इस particular topic के बारे में। एक टेबल आपको वो तो देना ही है कि किस किस context में हर पेपर में बात की गई है, एंड उसका एक समरी भी देनी है लास्ट में कि किस context में ज़्यादा बात हुई है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में इसमें यू हैव टू टॉक अबाउट एंटीसीडेंट एंड आउटकम। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, तो जो हमने एडीओ मॉडल लिया था उसको भी आप इसमें दिखा सकते हो। इसमें आप बता सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट एंटीसीडेंट एंड आउटकम फॉर इट। सो this is another important aspect of it. Next comes the methodology part. So let me take you to the methodology part as well. Methodology part is like sample and data. Look at this. मतलब इसके अंदर इसमें ये बताना है बेसिकली सैम्पल एंड डेटा में इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, राइट? उसमें है आपका जैसे डेटा कलेक्शन। आर यू ऑल गेटिंग मी एट दिस? सबको समझ में आ रही है ये चीजें? हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रही है ये सब चीजें? Yes, ma'am. Understand. एनी? ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द TCCM फ्रेमवर्क, राइट? तो ये भी आप अपने पेपर्स में डाल सकते हो। तो जो लास्ट है दैट इज अ सैंपल मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के अंदर आपका क्या आता है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज अ सैंपल एंड डेटा। इसके अंदर आपका क्या आता है? डेटा कलेक्शन, कि आपने इसके बारे में पूरा बताना आपको कि आपने कितने कंट्रीज का डेटा लिया है, राइट? एंड किस कंटेक्स्ट में लिया है, attitude of individual and national context. So data collection, right? So this is the first aspect that you have to cover into it.
नेक्स्ट इज द एनालिटिकल टूल्स. आपने कौन कौन से टूल्स लगाए? लेट मी टेक यू टू द दिस थिंग. एक मिनट. दिस इज टेबल 2, राइट? टूल्स में जस्ट लुक एट दिस कि आपने रिग्रेशन लगाया है, सर्वे मेथड किया है, केस स्टडी एनालिसिस किया है, मिक्स मेथड और क्लस्टर एनालिसिस. सो ये किस में आ रहा है? दिस इज कमिंग इनटू द एनालिटिकल टूल्स यूज्ड. मतलब ये जो पेपर है, जो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द मेथडोलॉजी पार्ट ऑफ द TCCM फ्रेमवर्क, राइट? तो उसके अंदर व्हाट एग्जैक्टली विल कम, इट विल कम कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, कितने कितने लोगों का सैंपल साइज कलेक्ट किया है. उसके बाद एनालिटिकल टूल्स. टूल्स के अंदर क्या बता रहा है ये? टूल्स में बता रहा है कि आपने कौन से टूल्स लगाए हैं. रिग्रेशन, इसको आप डिफरेंट अपने अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये टूल्स, इसमें टूल्स में मेथडोलॉजी में टूल्स के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं. लेट्स से हो सकता है लोगों ने P टेस्ट लगाया है, रिग्रेशन लगाया है, अनोवा लगाया है, राइट? दिस इज वन वे ऑफ doing analysis using the methodology part. So I told you this thing. Let's say स्कोपस का डेटाबेस से आपने निकाला है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आई टोल्ड यू दिस थिंग. दिस इज योर अब्स्ट्रैक्ट, राइट? ये आपका जैसे अब्स्ट्रैक्ट है, इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ. तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? दिस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पेपर, व्हाट इज द मेथडोलॉजी यूज्ड. आपने यहाँ पे एक और कॉलम बना लेना है, दैट इज द मेथडोलॉजी यूज्ड, राइट? तो एक एक एब्स्ट्रैक्ट को यू हैव टू रीड ईच वन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद आप इसको पढ़ते जाओ और यहाँ पर लिखते जाओ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन मेक दिस टेबल, राइट? ये इन्होंने डिफरेंट लिया है. आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हो. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. मेथडोलॉजी में टूल्स यूज्ड के अंदर आप बता सकते हो कि आपने की टेस्ट किया Ma'am, I है, have a रिग्रेशन. doubt, ma'am. हाँ जी, हाँ जी मैम. Ma'am, you were talking about the analysis, no? जी मैम, जी मैम. That is about what are the studies we have covered in our paper. In those papers, whatever methodology has been used. Yes, What's the concept? yes, yes, yes. Because we don't have any analytical tools, no? No, yes, 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 yes. We are not doing any analysis. ये हम सिर्फ अपने आप से abstract को पढ़ के यहाँ से सारा analysis. We are Yeah, doing each the and every analysis. work we have included. In that work, what analysis they have used? Yes, 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 yes. Right. Yes. तो ये जो SLR है बेसिकली, लेट मी गिव यू दिस थिंग. जो SLR जब आप कर रहे हैं, है ना, तो SLR के अंदर you have to understand that every analysis that you do is to be done by the author, right? Author, and ये कैसे करते हो आप? With the help of the Excel file that you extracted from the database. Excel file that was extracted from database. Please understand this thing. When we are talking about the SLR, that is a systematic literature review, right? So every aspect has to be done by the author with the help of Excel file that has been extracted from this. Either the Excel file, if you do not get the information from the Excel file, this file or the abstract, so what you can do is you can download the papers, and then you can extract the information. If the information is not here, so it can be extracted with the help of the papers, right? And papers. So I told you one more important thing was, like, आप अपना Google Drive के अंदर, like, look at this. So what I have done is basically कि मैंने अपने Google Drive के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं और जिसके अंदर सारे के सारे पेपर्स हैं, और वो मैंने अपने को ऑथर्स से भी शेयर किया है. को ऑथर्स ने भी इसमें फाइल डाल दिया. सो इट बिकम्स मोर इजी फॉर ईच वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से पेपर्स हैं. कोई भी इस पेपर्स को देख सकता है, राइट? तो सो वी वर टॉकिंग अबाउट द मेथडोलॉजी पार्ट. So this is one way
दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. आप इसको ये भी कर सकते हो, एक इस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डाटा, राइट, एंड कंसेप्चुअल पेपर्स. सो जब मेथोडोलॉजी पार्ट आता है, कंसेप्चुअल पेपर्स, केस स्टडी एनालिसिस, तो ये भी हो सकता है, राइट. तो जब आप मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हो तो आपने सारे पेपर्स में से, दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग when we are talking about the methodology, and this is another way of classifying when we are talking about the methodology part, right. So what they have done, this is what they have done. आप इसके अंदर एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो. लेट मी गिव यू अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग, दैट इज अ क्वालिटेटिव स्टडीज, qualitative studies and quantitative studies, and इसमें conceptual, basically qualitative, quantitative and conceptual. This is another way of classifying. So in the methodology part, so what you can do, one is the tools used, this is what you can do methodology mein. Next is ये data, how you have collected your data, so it can be till this much, right. So analysis में एक और part भी हो सकता है, how you have done the analysis, that is the qualitative data, quantitative data, that is the qualitative data, quantitative data. I hope you understand the difference in all these things, conceptual paper. So इस तरह से भी जो ये methodology part है, so what we are talking about, we are talking about the methodology part. तो इस तरह से भी आप इसको methodology part को दिखा सकते हैं. प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए. सनी जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, राइट. तो इस तरह से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, राइट, मेथोडोलॉजी. सो दिस इज योर, इसमें एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड भी है, एक मिनट लेट मी चेक. दिस इज अनदर टेबल. अच्छा, इसी को इन्होंने करा हुआ है, राइट. सो दिस इज योर TCC. हाँ, एक और ये भी चीज कर सकते हैं इसमें आप, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेबल. इसमें आप बता सकते हैं कि जो टॉपिक है पर्टिकुलर, उसमें कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्टडीज के नाम, ये कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से उसमें कंट्रोल वेरिएबल्स हैं. ये टेबल भी आप बना सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. I hope this is clear. TCCM framework, I hope it is clear. Should I repeat this again? Is it clear? Please raise your hand अगर आपको TCCM framework clear हुआ है. Ma'am, can we talk about methodology once again? Ma'am, Okay. ma'am, I have a doubt. Here, ma'am, how we segregate independent and dependent variable, ma'am? सर, ये मॉडल्स बने होते हैं ना, उसी के अंदर दिया होता है कि विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये आपको हर पेपर में जाके आपको देखना पड़ता है उसमें. Yes, जैसे आपने independent variable models- is the demographic Not factor. available, ma'am. हाँ जी, Sometimes it's not available, ma'am. हाँ, तो फिर आपको उसको पेपर को छोड़ना पड़ता है. फिर आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हो ना. ये जो टेबल इन्होंने बनाया, इसके अंदर इन्होंने ये आप देख रहे हो, कुछ ही पेपर्स में इन्होंने कम से कम 100 से ज्यादा पेपर्स को लिया है. तो इसमें कुछ ही पेपर्स में आप देख पा रहे हो कि सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. Okay, देख रहे हो fine. ना. हाँ, तो सारों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि हर पेपर के अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता, कुछ ही पेपर्स में होगा. तो जो पेपर्स में होगा उन्होंने उसी को सिर्फ दिखाया. जस्ट लुक एट दिस, है ना. इसमें नंबरिंग नहीं की. जैसे इसके अंदर इसके ऊपर वाला टेबल, ये टोटल 100 का सैंपल है इनका, है ना. तो इसमें हर पेपर का निकाला. इसमें एवरी पेपर हैज बीन प्लेस्ड इनटू दिस कैटेगरी. Are you getting me? मतलब how many papers has the case analysis? 38. Regression analysis कितनों ने किया है? लगाया 23. जिसमें regression होगा ना, जिसमें regression होगा बेसिकली उसी में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या मिक्स्ड मेथड्स. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया 100 वर्ड, मतलब ये टोटल सैंपल साइज को मेंशन किया. बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, what they have done is they have not mentioned the total number, they have just written the dependent variable में in-text citation को बस मेंशन कर दिया. बस इतने ही पेपर्स में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, इतने में इंडिपेंडेंट एंड इतने में कंट्रोल वेरिएबल. सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट.
आई होप दिस इज क्लियर, ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ है? यस मैम। ओके, मेथडोलॉजी पार्ट में व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपने जो पेपर है आपका, राइट, जो आपने पेपर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं उसमें मेथडोलॉजी कौन सी यूज करी गई? वैसे तो मेथडोलॉजी में बेसिकली ये आपके जो टेस्ट हैं, है ना, एक तो पार्ट ये भी आ जाएगा मेथडोलॉजी पार्ट में कि आपने कौन कौन से टेस्ट को यूज किया है, जैसे टी टेस्ट किया है, रिग्रेशन किया है, नोवा। मेरा ये कहने का मतलब है, लेट मी टेक यू टू दिस, जैसे हमारा ये पेपर्स हैं, ठीक है, ये मेरी स्कोपस की फाइल है, यहाँ से मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट लिया, राइट, लेट मी डू इट अगेन, एब्स्ट्रैक्ट लिया, उसको यहाँ पे कॉपी किया और एक एक को पढ़ा, ठीक है। तो इसी के अंदर से मुझे पता लगेगा कि यहाँ पर हर पेपर में कौन सा टूल्स को यूज किया है। आर यू गेटिंग मी? तो ये आपको लिखना होता है यहाँ पर साइड पे, यू जस्ट राइट इट डाउन। कुछ पेपर थियोरेटिकल भी होते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है ना। कंसेप्चुअल पेपर्स में नहीं होगा, लेकिन जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा होगा उसके अंदर टूल्स जरूर लगेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा में टूल्स जरूर लगे होंगे, है ना। तो लेट मी टेक यू, मैं 1 मिनट देखती हूँ। Yeah, thank you, ma'am. Understood. है ना, तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। एंड जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ये वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस इज वन वे, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, दिस इज अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन, प्राइमरी डेटा लिया है, सेकेंडरी लिया है, या फिर केस स्टडी एनालिसिस है। नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ये एक अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है, ये कंसेप्चुअल पेपर है, राइट। तो ये मेथडोलॉजी जो आपके पेपर्स में यूज हुई है, जो आपका टॉपिक है उसमें जो एक्सेल फाइल निकली है, उसके जो पेपर्स हैं उसमें कौन सी मेथडोलॉजी यूज की है। आप यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हो, राइट, और एक एक पेपर को जब आप स्क्रूटनाइज करोगे, यहाँ लिख सकते हो कि टूल्स यूज्ड कौन कौन से थे। ये एक एक पेपर का यू हैव टू राइट इट हेयर। लेट्स से यहाँ पे रिग्रेशन लगाया है, सो यू राइट इट हेयर रिग्रेशन, फिर टी टेस्ट लगाया है, सो राइट इट हेयर टी टेस्ट, फिर अनोवा लगाया है। तो इसी तरह से एवरी पेपर हैज टू बी sorted based on to this. So this includes your methodology part, right? So this is your in totality your TCCM framework. I hope this is clear to all of you, right? So let's move to the next important aspect. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया, I have told you this thing कि data analysis part of the SLR paper, है ना। What I have told you is the data analysis part of the systematic literature review. ये सारा, ये जो ऊपर ये सारी जो चीजें बताई है, ADO मॉडल भी यूज कर सकते हो आप, TCCM फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हो, ये सारा डाटा एनालिसिस पार्ट है। और जो ऊपर सारी चीजें बताई हैं ये वाली, that all becomes a part of the ये data analysis, this all becomes a part of the data analysis, right, in the SLR। ये कर सकते हो। Now you know, next important aspect that I wanted to tell is कि जो SLR है वो आप कितने तरीकों का लिख सकते हो। ये मैंने अभी आपको क्या कहा, एक टॉपिक, लेट्स से वर्चुअल रियलिटी, ये एक टॉपिक है ना, इसके ऊपर आप SLR कर सकते हो, राइट। एक टॉपिक है, दिस इज वन टॉपिक, वर्चुअल रियलिटी, राइट, वर्क लाइफ Your बैलेंस। screen is not visible. बाकियों को भी नहीं विजिबल है? हाँ जी, It's visible. I think what you need to do is you just log off and then log in, then it will become more clear. Sometimes there is network issues. Okay, what I'm trying to tell you, आप कितने टाइप्स का SLR लिख सकते हो। So my next question is types of SLR, कितनी तरह का आप SLR कर सकते हो। This is my next important thing. First is किसी एक कॉन्सेप्ट पे
किसी एक कॉन्सेप्ट पे, दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, किसी एक कॉन्सेप्ट पे आप एसएलआर कर सकते हो, लाइक वर्चुअल रियलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। तो क्या है, दीज आर द कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आप कर रहे हो, टॉपिक्स हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप एसएलआर कर सकते हो, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, थ्योरी बेस्ड हो सकता है एसएलआर। थ्योरी बेस्ड का क्या मतलब है, जैसे आपके पास ये थ्योरी है, एक मिनट, जैसे आपके पास एक थ्योरी है, इसमें एक मिनट यहाँ जर्नल लिख देती हूँ नेक्स्ट। जैसे आपके पास कोई थ्योरी है, लेट्स से थ्योरी ऑफ टैंड बिहेवियर, हो सकता है ना, आपके पास कोई थ्योरी है, आप इसके ऊपर भी लिटरेचर रिव्यू कर, एसएलआर कर सकते हो। You can do SLR, systematic literature review based on some theory. पहले मैंने क्या आपको बताया, based on some concept, जैसे impact investing एक टॉपिक है ना, वर्क लाइफ बैलेंस एक टॉपिक है, वर्चुअल रियलिटी एक टॉपिक है, तो आप उसके ऊपर एसएलआर कर सकते हो। इसी तरह से कोई एक थ्योरी है, जैसे थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, राइट। और कौन सी थ्योरी हो सकती है, एक होती है फ्लो थ्योरी, राइट। और कोई भी जो भी थ्योरी आपको लगता है, आप उसके ऊपर भी एसएलआर कर सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन टू दिस। दिस इज अ पेपर, look at this. This is a paper. This is again by Justin Paul. He is the author. He is one of the authors of this. इसमें कौन सी थियरी है, द रोल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी इन मार्केटिंग साइंस। ये जो एसएलआर लिखा गया है पूरा का पूरा, ये किसके ऊपर लिखा गया है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। इसके ऊपर भी आप एक एसएलआर लिख सकते हो, ये भी उठा सकते हो, है ना। ये पेपर, आई विल शेयर ऑल दीज पेपर विद यू, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो जर्नल्स किस तरह से दिया हुआ है, जर्नल्स कौन कौन से जर्नल्स ने इस थ्योरी को पब्लिश किया है, राइट। एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली सर्वेड कंट्रीज, किस कंट्री में ज़्यादा रिसर्च हुई है इस टॉपिक के ऊपर, इस थियरी के ऊपर। तो ये इस तरह से आप इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो, एसएलआर लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट, आप एक जर्नल के ऊपर भी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑन टू दिस। दिस इज, इसमें पर बिब्लियोमेट्रिक किया है। जब आप जर्नल के ऊपर लिख रहे हो एसएलआर, तो आप उसमें बिब्लियोमेट्रिक ही कर पाओगे, उसमें आप प्रॉपर ये नहीं कर पाओगे जो हमने किया है, बट आप उसमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर पाओगे जर्नल के ऊपर, क्योंकि हम कर रहे हैं, है ना। ये जर्नल है, ये दिस इज वन पेपर दैट आई एम शोइंग इट टू यू। मेरी दिस इज माय फ्रेंड्स पेपर ओनली, शी इज माय कोलीग एंड शी हैज रिटन दिस पेपर एंड दिस पेपर गॉट एक्सेप्टेड इन दिस जर्नल ओनली। ये जर्नल था जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल, राइट। तो इसमें देखो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड अ वे फॉरवर्ड। सो आप इसके ऊपर भी बिब्लियोमेट्रिक, मतलब ये एसएलआर और बिब्लियोमेट्रिक कर सकते हो। इस पे बिब्लियोमेट्रिक ही बनेगा, लेकिन जब आप जर्नल के ऊपर कर रहे हो ना, किसी सिर्फ जर्नल के ऊपर कर रहे हो, क्योंकि इसमें थ्योरी वगैरह तो क्या ही आएगी, है ना, और वो पॉसिबल भी नहीं है, तो आप इसमें बिब्लियोमेट्रिक ही लगा सकते हो। तो मतलब आप इसमें जर्नल के बेसिस पे भी कर सकते हो। I hope these points are clear to all of you. Please raise your hand if these things are clear to you. Please Ma'am, raise your hand. बिब्लियोमेट्रिक हाँ जी, एनालिसिस जर्नल के ऊपर करना है क्या, मैं कोई सब, एसएलआर हाँ जी बिब्लियोमेट्रिक? सर, अगर आप जर्नल, एक मिनट, अगर आप जर्नल को ले रहे हो, अगर आप एक पर्टिकुलर जर्नल पे लिख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सिर्फ जर्नल की बात कर रही हूँ, ये जो जर्नल आपको जो जर्नल आपको दिखाई दे रहा है, जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो सिर्फ इसी जर्नल के ऊपर है सब जो लिखा हुआ है। लुक एट दिस, इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट कहाँ से किया, जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स मेक्स अवेलेबल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज एंड इंसाइट ऑन द करंट मैटर्स ऑफ द लॉ रेगुलेशन। लुक एट दिस, यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द जर्नल से स्टार्ट किया है।
आर यू गेटिंग मी एट दिस? और इसके अंदर आप जैसे लुक एट दिस ना, जैसे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, उसमें आप कॉन्सेप्ट को, थियोरीज वगैरह को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब आप जर्नल की बात कर रहे हो तो आप इसमें बिब्लियोमेट्रिक ही कर सकते हो। जर्नल के ऊपर अगर आप एसएलआर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ही यूज होगा। हाँ जी, हाँ Ma'am, जी can you मैम। briefly explain what is bibliometric analysis? Yeah, that is what मैं is my अभी बिब्लियोमेट्रिक तो अब हम करेंगे ना सर, वी right. विल बी डूइंग इट। इसके अंदर बेसिकली बिब्लियोमेट्रिक के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी मेकिंग ग्राफ्स। आई विल शो यू। मैं अब इसके बाद हम वी आर गोइंग टू मूव ओनली ऑन बिब्लियोमेट्रिक्स ओनली। Because अब मैं I'm बिब्लियोमेट्रिक working on की that project, ma'am. I'm working for one journal. ओके So I'm more interested in that bibliometric part. जी जी मैम। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली ऑन द बिब्लियोमेट्रिक इट्सेल्फ। Sure, ma'am. Sure. आई Ma'am, होप will you दिस इज। show, ma'am? Hello, हाँ जी, हाँ जी, hello, हाँ जी, हाँ जी, ma'am. Will you जी जी। show one difference between after the bibliometric, the difference between SLR and bibliometric? Can you show after वो bibliometric आपको is done? वो आपको अपने आप से पता लग जाएगा। अभी मैं आपको शो करूंगी ना, यू विल Okay, okay, अंडरस्टैंड द okay. बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। Okay, आपको after बिल्कुल this अपने bibliometric, क्लियर। yeah, अब yeah, sure. स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिब्लियोमेट्रिक ओनली। Okay, ma'am. After this bibliometric, I will clear my idea about after getting your session. I have started to work on SLR, so I will tell you that how I've done. Can you tell me that it's whether it is wrong or right यस procedure यस, I have doing? I have started just डेफिनेटली। by your workshop. I have started. नाइस, वेरी नाइस, दैट इज वेरी ग्रेट। So नाइस, वेरी गुड। only thing is that you, डेफिनेटली। okay, you guide me that whether I'm in the right procedure or in the wrong श्योर procedure. श्योर Okay, श्योर thank you, ma'am. श्योर। After this. Okay, so let's start with the next important aspect, that is your bibliometric analysis, right? So, bibliometric analysis mein what exactly do we do? Anybody here who can tell me? Anybody who can tell me here Ma'am, what is? ma'am, I think Ma'am, we will. basically referring the sources, we are analyzing the sources from where they have all the articles were written. Like all the papers, what all sources they have used are common for them. Okay, It's like let a me tell text you. analysis. Yes. So अब look at this, right? अभी तक हमने जब एसएलआर में किया, सो व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग टू ऑल ऑफ यू वाज कि जैसे इसमें टूल्स यूज था, राइट? तो टूल्स यूज, आई वांटेड यू टू राइट इट हियर अपने आप से, है ना? कि जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट है, तो मैंने आपको क्या कहा एसएलआर में कि यू राइट इट हियर कि कौन कौन से टूल्स यूज करें, ठीक है? और अगर कंट्री ऑफ द ऑथर, मैंने क्या बोला था आपको कि ये पेपर, लेट्स से दिस पेपर, ये कौन सी कंट्री में लिखा गया है, किस कंट्री में इसकी स्टडी हुई है ना? तो ये अब क्या है, जब आप बिब्लियोमेट्रिक करते हैं तो बिब्लियोमेट्रिक में इस तरह के ग्राफ्स आप देख पा रहे हो, ये सारा कुछ इस तरह के ग्राफ्स ये अपने आप से डेवलप हो जाते हैं कि जैसे कंट्री ऑफ ऑथर। यहाँ पर एसएलआर में आपने क्या किया था, यहाँ पे खुद बनाया था हर एक को, मतलब हर एक एब्स्ट्रैक्ट को यू हैव रेड इट and then you note it down. But when we talk about the bibliometric analysis, we don't need to do anything. The computer will do everything for us, है ना? And it will make beautiful graphs, it will make different plots, and it will make the diagrams for us. We just have to copy those diagrams into our SLR paper, into our paper, and we have to write the explanation to it. That's it, राइट? सो एसएलआर जब हमने किया तो हमने सब कुछ मैनुअली किया, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, सो द सिस्टम और द सॉफ्टवेयर विल डू दैट रिजल्ट्स फॉर अस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैं इसमें आपको इसके अंदर मैं जो आपको करवाने वाली हूँ आज, दैट इज ऑन आर सॉफ्टवेयर, एंड उसका सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड एज बिब्लियो शाइनी। हम अभी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर और फ्री में?
free. R is a free software और Biblioshiny again is a free software, right? तो मैं आपको क्या बता रही हूँ आज, bibliometric analysis, right? So अभी तक हमने ADO मॉडल और वो किया, राइट? तो अब हम कर रहे हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. बिब्लियोमेट्रिक में ग्राफ्स, प्लॉट्स वगैरह खुद अपने आप बन के आएंगे. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तो वी जस्ट हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन, राइट? तो दैट इज अ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. हम जो करेंगे इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं. एक सॉफ्टवेयर जो है वो है वॉसव्यूर एज वेल. So this is another software that you can make use of. But today we will be talking about the R software में जो एक है Biblioshiny. That is the software we are going to make use of. And with the help of this Biblioshiny, we are going to do the bibliometric analysis, right? So let's start with it. Yesterday, you know that I have got this file. हमने निकाली थी ना ये वाली फाइल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की, राइट? तो मैंने इसमें सारे जो फील्ड्स हैं वो लिए हैं. देख पा रहे हो आप? दिस इज ऑथर्स. लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ इट. ये एज इट इज स्कोपस से एक्सट्रैक्टेड फाइल है. कुछ नहीं किया मैंने इसको. आई डिड नॉट touch this file, right? This is a raw file that I have abstracted from the Scopus database, right? So even you don't have to do anything. So let's start with it. करेंगे कैसे हम इसको? सबसे पहले you have to open your R Studio. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा. It is not very tough. कुछ नहीं करना आपको. I will tell you what are the different commands. Let me close down the extra windows that I have opened. Let me close it down. हाँ, ओके. तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, R इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, राइट? तो सबसे पहले आपको ये आप कमांड देख पा रहे होंगे. मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करती हूँ. ये आज की डेट में इफ वी टॉक अबाउट द R सॉफ्टवेयर, दैट इज वाइडली यूज्ड. जो R सॉफ्टवेयर है वो फ्री सॉफ्टवेयर है और ये वर्ल्ड ओवर द पीपल आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, राइट? तो इवन यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर यूजिंग द R सॉफ्टवेयर. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो उसके अंदर सबसे पहले आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है. एक आपको R करना है विद this is the command for installing R. After this, once it is done, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इजी, नथिंग, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा. उसके बाद आपको R Studio करना है एंड दिस इज द कमांड, right? And once it is done, so what you have to do on your laptop, you have to type R Studio here. You can see there is an icon. You have to open this. You have to click onto this open button, right? So with the help of this, so what will happen is these four windows, these are the four windows होती हैं इसमें. ये एक these are the 3-4 windows that will open, right? तो ये वैसे 4 होती है, एक ये भी होती है यहाँ पर जो हमें नहीं दिखाई दे रही है. दिस इज 1, ये 1, 2, 3 एंड 4 विंडोज, राइट, खुल जाएंगी. ये वाली जो विंडो है उसमें आपने ये कमांड लिख देनी है. कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए सिर्फ वो लिखने हैं. वो मैं आपको सारा लिख के आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल फॉर दिस. आपको इसमें बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल ये कमांड्स अगर आप रन करेंगे और सब कुछ इजीली हो जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कमांड्स लिखनी एज इट इज, राइट? इसका ये सिंटेक्स है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू यूज द बटन रन. ठीक है, तो इसमें मैंने रन किया तो ये इंटरफेस खुला मेरे पास. कैन यू सी टू दिस? दिस इज द इंटरफेस फॉर द R. ये R का इंटरफेस, सॉरी, Biblioshiny का इंटरफेस है. दैट गेट्स ओपन विद द हेल्प ऑफ द R सॉफ्टवेयर, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंट स्टेप्स? यहाँ पे लिखा है डेटा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लोड द डेटा. कैन यू सी टू इट? प्लीज चूज व्हाट यू इम्पोर्ट रॉ फाइल.
कौन से डेटाबेस से लेनी है? स्कोपस। चूज अ फाइल, ब्राउज करना है आपने, ये मेरा स्कोपस 2 था, एंड यहाँ पर स्टार्ट। ये सबको समझ आ रहा है? Are you able to understand? Please raise your hands if you are able to understand, please. Ma'am, can you show again how you open this BiblioShiny Yes, from R? yes. मैं 1 मिनट दो मुझे, definitely I'll do it. Okay. तो हमने क्या किया था? मैंने ये यहाँ पर ये कमांड्स हैं लिखी हुई, इधर देख रहे हैं? मैं आपको इसमें एक वर्ड फाइल है मेरे पास, उसमें भी लिखी है कमांड्स। 1 मिनट, लेट मी शो यू दिस। ये 3 कमांड्स है बस, दैट्स इट। These are the 3 commands. I will give it to you. Wait, we will write it down. I'll provide you this material. मैं आपको आप खोलना चाहते हो खोल लीजिए। अगर आपके पास आज स्टूडियो है तो आप इसको, मैं इसको उसमें डाल देती हूँ। 1 मिनट, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, इसके मैसेज बॉक्स में, राइट? लेट मी पुट इट इनटू द मैसेज बॉक्स। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट? ये कर दिया मैंने। सो यू कैन पुट दीज 3 कमांड्स। ये सिर्फ 3 कमांड्स हैं, है ना? उसको पुट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे एक बटन है कॉल्ड एज क्लिक ऑन टू दिस बटन, रन। इस बटन को रन करना है तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा ऐसा। ये मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है। व्हाट आई हैव डन इज, एक इंटरफेस आया, यहाँ पर आया डेटा, फिर आया यहाँ पे लोड डेटा, ठीक है? लोड डेटा वर्ड है लेफ्ट साइड पे मेरे। इधर 3 कॉलम्स, दो हैं इसमें ऑप्शंस। इसमें इंपोर्ट रॉ फाइल, बिल्कुल एज इट इज जो मेरी एक्सेल की फाइल डाउनलोड हुई थी, मैंने इसमें इंपोर्ट रॉ फाइल कर दी है। डेटाबेस स्कोपस, फिर ब्राउज करा, मैंने आपको अभी दिखाया था स्कोपस की जो फाइल है मेरी, ये वाली रॉ फाइल, उसको एज इट इज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्लिक ऑन द बटन स्टार्ट हियर। कैन यू सी टू इट? ये सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा है ये चीज? औरों को भी, आई वांट अदर्स। मैडम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, कहाँ से रिपीट करूँ मैं इसको? आर से जो अपलोड किया ना वहां से स्कोपस सिलेक्ट किया। अच्छा, इधर कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शंस देख पा रहे हैं मेरा? जस्ट लुक एट माय कर्सर। दिस इज इंपोर्ट रॉ फाइल। रॉ फाइल थी मेरी वो एक्सेल वाली। डेटाबेस कौन सा आपका? वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, डायमेंशन, लेंस डॉट और कौन सा है? मेनली स्कोपस और वेब ऑफ साइंस यूज होता है ना। तो मैंने यहाँ पे स्कोपस सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे ब्राउज की ये फाइल जहाँ पड़ी है मेरी, उसको फेच किया और बटन स्टार्ट का दबा दिया यहाँ पे। स्टार्ट बटन तो मेरे पास नीचे यहीं पर ही है। हाँ जी यहीं पर होगा। मैंने सेव कर दिया। इसके अंदर 2 ऑप्शंस पे हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट बाकी सब पे मिलेंगे, ठीक है? तो इसको क्लोज कर दिया मैंने। नाउ सबको यहाँ तक, एवरीबडी इज विद मी टिल हियर नाउ? सब है मेरे साथ? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर विद मी टिल हियर। यस मैम, यस मैम। है ना? अब तो समझ आ रहा है ना हमें सबको? ओके फाइन। नाउ अब आपको डिफरेंट ग्राफ्स बनाना। लुक, बिकॉज ऑफ द अभी हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत बड़ा है बिब्लियोशाइनी भी, है ना? जो अभी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं आपको वो कवर करा देती हूँ, ठीक है? सो वी विल मूव फ्रॉम द फर्स्ट। इसमें ना यहाँ पर लुक एट दिस, इधर लेफ्ट साइड पे ना ये बहुत सारी ऑप्शंस है। ओवरव्यू, सोर्सेज, है ना, ऑथर्स। अब क्या है, विद द हेल्प ऑफ बिब्लियोशाइनी आपके खूब सारे ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है? ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको खूब सारे ग्राफ्स बना के दे सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ओवरव्यू बताएगा ये, मेन इंफॉर्मेशन का ओवरव्यू, जो आपके पेपर्स हैं, है ना, जो आपके टोटल पेपर्स हैं। जो मेरा स्कोपस का डेटाबेस था उसमें 125 पेपर्स हैं टोटल, ठीक है? तो उसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन वो ये बता रहा है, ठीक है?
these are the main information that has been extracted, that this itself has extracted from this Excel फाइल. ये जो मेरी एक्सेल की फाइल है, इसमें से इसने अपने आप से, look at this, now you don't have to fetch any information from the abstract or something like that. Now what this software itself will do it for you. आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको तो सब इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर देगा. इसके अंदर प्लॉट मतलब ये डायग्राम फॉर्म में बता रहा है और टेबल फॉर्म में भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट. तो इसमें क्या बता रहा है, सबसे फर्स्ट जो आपका डेटा है वो कौन से कौन सी ईयर तक है, 11 से 23. मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस स्कोपस की जो एक फाइल, एक्सेल फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर रहा है ये बिब्लियोशाइनी आपका सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह क्या क्या बना सकते हैं. फर्स्ट इज द मेन इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इज द एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन. मतलब अब उसने बताया आपको कि जो आर्टिकल्स हैं 2011 से 2023 तक है ना. तो मैं इसको शो ऑल कर देती हूँ. तो ये दिखा रहा है कि 2011 में कितने आर्टिकल्स थे, 2. 12 में कोई नहीं था, 13 में 2, 14 में इतने. ये आपको सारा बता रहा है कि जो आपका टॉपिक है, जो आपके एक्सेल की जो फाइल है जिसमें आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2011 में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए, 2, है ना. तो ये सारी ईयर्स की इंफॉर्मेशन आपको अपने आप से दे रहा है, आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है. नाउ व्हाट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. लेट मी शो यू दिस इन एक्सेल फाइल एज वेल. इट्स ओपनिंग, वेट, ये देख रहे हो आप. लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑन टू दिस. लुक एट दिस, है ना. ये देख पा रहे हो आप कि ये ईयर्स हैं, ठीक है, और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं. ये आप एक्सेल में भी कर सकते हो. ये जो चार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं आपके पास, इसको आप एक्सेल में, CSV में कॉपी भी कर सकते हो, PDF भी या प्रिंट भी ले सकते हो. नेक्स्ट है आपके पास जो ग्राफ आ रहा है, ओके. नेक्स्ट आपके पास ये प्लॉट में भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो. ये क्या आ रहा है, एवरेज. दिस इज एवरेज टोटल साइटेशंस पर आर्टिकल. ये क्या बता रहा है आपको, एवरेज टोटल साइटेशन पर आर्टिकल. ये बता रहा है एवरेज टोटल साइटेशन पर आर्टिकल पर ईयर. एक ईयर में टोटल साइटेशंस कितनी, एवरेज बता रहा है ये, तभी ये पॉइंट्स वगैरह में है. अगर ये एवरेज नहीं बता रहा होता तो ये पॉइंट्स में नहीं होता, है ना. तो इसको आप फिर इसको भी, ये अब आप देख रहे हो साइटेशंस बता रहा है आपको ये, है ना, कि 2011 में उस टोटल डॉक्यूमेंट्स की साइटेशन कितनी थी, 2.5. ये एवरेज बता रहा है, ऑन एन एवरेज. ये अपने आप से एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा फ्रॉम योर एक्सेल फाइल. ये जो एक्सेल फाइल हमने इसको दी है, उसके बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने आप से एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है. बस आपको तो यहाँ पर ये बटन्स मूव करने हैं. सब मेरे साथ है ना इधर? Are you people able to understand it? Yes, but how many charts we needed for SLR? मैम ये डिपेंड करता है कि आपने अपने पेपर में ऑब्जेक्टिव क्या डाला है. दिस इज व्हाट इट डिपेंड्स ऑन. जैसे अगर आपको बहुत अच्छा पेपर करना है तो इसमें आपको देखना है कि कौन से आप चार्ट्स चाहते हैं. जैसे एक पेपर पे ना मैं वर्क कर रही हूँ अभी, इसके अंदर ना इन्होंने, मतलब ये सिंपल चार्ट्स, ये तो अभी आपको सिखाने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल चार्ट्स, राइट. तो लेकिन आप इसके अंदर थोड़ा सा टफ भी कर सकते हैं, लेकिन दैट टू लेटर ऑन. जैसे मैं एक पेपर पे काम कर रही हूँ, है ना, तो उसमें मुझे एक पर्सन ने बोला को अक्रेंस एनालिसिस, ऑथर कीवर्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंट कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, एवोल्यूशन ऑफ थीम्स विद टाइमलाइंस. बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें कर सकते हो, मैप बना सकते हो. जैसे अभी हमने ये बिब्लियोमेट्रिक का पेपर देखा, मैं लेट मी शो यू दिस.
ये आपके खुद के उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे ये पेपर है ना, तो लुक एट दिस, कीवर्ड्स यूज्ड, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी लॉन्ड्रिंग। एक मिनट, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ पेपर। No, show me data analysis tables. मैम यही वही आ गया। लुक एट दिस, ट्रेंड ऑफ पब्लिकेशन, ये डॉक्यूमेंट, साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट, हाईली साइटेड कीवर्ड्स। मैम मैं इसका ना थोड़ा सा एनालिसिस आपको दिखाती हूँ, फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स नॉट लाइक दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द एनालिसिस, दैट इज अ 3 फील्ड प्लॉट। इसके अंदर यहाँ से देयर इज एन ऑप्शन हियर, आप इसमें ये 3 मतलब 3 पैरामीटर्स को लेके आप इसको प्लॉट कर सकते हो। जैसे इसमें मिडिल में है ऑथर्स के नेम, ये वाला जो ये शो रहा है यहाँ पे ऑथर्स के नेम है, यहाँ पे रेफरेंसेस है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम कंट्री कर देते हैं, ये अब कंट्री आ जाएगा और इधर कीवर्ड्स आ जाएंगे। लेट मी शो यू दिस, लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग ग्राफ, दैट इज अ 3 प्लॉट फील्ड ग्राफ, जिसके अंदर क्या है बेसिकली 3 पैरामीटर्स को लेके आप इकट्ठा उसको प्लॉट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, ये कंट्री है, इस कंट्री में कितने ऑथर्स ने काम किया है, लुक एट दिस। सो यहाँ पे दिखा रहा है 5, है ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर जाओगे, ये इधर से देख सकते हो, ये जैसे ये पर्सन है, दैट इज नाम भी एनागनोस्टुक, राइट। सो ये जो एनागनोस्टुक है, इसने ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, इसने किस कंट्री पे काम किया, ये देख रहे हो आप नीचे ये जो लेयर जा रही है इसकी, ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज ही हैज वर्क, दिस पर्सन हैज वर्कड ऑन टू द ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड इसका एक और भी दिखा रहा है, दैट इज द, इसने कौन से कीवर्ड को लेके काम किया है, ये इधर शो कर रहा है ना। तो इस तरह से आप इसका ये भी एनालिसिस कर सकते हैं, दैट इज अ 3 फील्ड प्लॉट, ये भी कर सकते हो। इसकी इमेज आपको यहाँ पर इसमें निकल जाएगी PNG फॉर्मेट में। लेट मी शो यू दिस, एंड दिस ऑल्सो यू कैन पुट इनटू योर पेपर। एंड बस आपको क्या करना होता है, ये पिक्चर्स दिखा के, सो जब हम बिब्लियोमेट्रिक करते हैं ना, सो बिब्लियोमेट्रिक के अंदर ये पिक्चर्स ड्रॉ करता है बेसिकली, है ना, और उसके बाद यू हैव टू राइट द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। सो लेट मी शो यू सम इंटरेस्टिंग, मैं आपको इसमें कुछ और जैसे हम मेटा एनालिसिस में फनेल चार्ट प्रिपेयर करते हैं, वैसे यहाँ भी आता है। नहीं मैम, मेटा एनालिसिस तो मैम बिल्कुल ही अलग हो गया ना, उसके अंदर तो आप मेटा में तो ये करते हो ना कि हाँ वो अलग एनालिसिस है मैम, वो तो हाँ स्टैटिस्टिकल, जैसे कोरिलेशन लगाया उसमें, फिर रिग्रेशन लगाया, तो उसके ऊपर आप उसके ऊपर करते हो, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है मैम ये चीज, ये तो बिल्कुल ग्राफ्स नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि फनेल का चार्ट इसमें आता है क्या? नहीं 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 नहीं, ओके नहीं मैम। अब जैसे इसमें मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेज, तो ये बता रहा है कि ये वाला जो जर्नल है सस्टेनेबिलिटी है ना, तो उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 16, जो हम वहाँ पे खुद कर रहे थे SLR में, ये आपको सारा खुद बता रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इट इज शोइंग, है ना। अभी आपको मेन बता देते हैं। नेक्स्ट ऑथर्स का भी इसी तरह से, in that SLR we have done all manually, and over here it's automatically done when we have yes मैम, लेकिन कुछ एनालिसिस, सारे एनालिसिस नहीं है ना इसमें, जो हमने वहाँ पे किए हैं तो सारे एनालिसिस नहीं है ना वहाँ के और यहाँ के सेम। yes ma'am, some of them may be similar but some of them must not be similar, है ना। मोस्ट रेलेवेंट ऑथर, तो इसका भी बता रहा है ये कि कौन से ऑथर ने आर्टिकल्स कितने कितने लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बिल्कुल सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ। मोस्ट रेलेवेंट एफिलिएशन, एक पार्ट कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट है ना, तो उसमें से कितने लोगों ने काम किया, 11। ये जो पेपर, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ की दिखा रहा है, ये जो हमने एक्सेल फाइल बनाई है उसमें से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसी की इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है ना, और उसी के बेसिस पे आपको ये सब चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कंट्री, ये भी एक चार्ट है जो आप बना सकते हैं।
लुक एट दिस, ये जो एक सिंगल कलर दिखा रहा है ये सिंगल कंट्री है, और ये जो ये वाला कलर दिखा रहा है पिंकिश, ये जो भी है, तो इसका मतलब है मल्टीपल कंट्री एनालिसिस, मतलब इसने यूएसए वाले ने किसी और कंट्री के साथ भी काम किया है, सो इट इज मल्टीपल, राइट। तो Ma'am? ये चार्ट्स भी Ma'am, we actually did SLR, no? We have manually done something using SLR. Is it possible to give those data to R and get this kind of charts and other things? यस यस कर सकते हैं We मैम can इसमें give आप। those data and get analysis. हाँ जी, हाँ, यू कैन पुट दिस एनालिसिस। लुक, मुझे क्या लगता है कि अगर आप SLR लिख रहे हो ना, तो उसमें जो डेटा एनालिसिस पार्ट है ना, यहाँ से भी उठा के उसको डाल सकते हो, सो दैट मेक्स अ वेरी गुड पेपर, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है दैट गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू योर पेपर। दिस इज व्हाट द है ना। जैसे अब इसमें वर्ड क्लाउड आ गया, ये देख रहे हैं आप, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स और वर्ड क्लाउड। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज वर्ड है वो पूरे पेपर्स में 125 पेपर्स हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज्ड वर्ड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर सस्टेनेबिलिटी, ये जितना जितना मोटा होगा, जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिखा हुआ आ रहा है बड़ा, तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा पेपर्स में कीवर्ड्स में यूज हो रहा है ना। इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी, फिर इन्वेस्टमेंट देख लो, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइक दिस। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, ट्री मैप बना सकते हो इसको टेबल में भी देख सकते हो आप ये। तो इस तरह से हम इसको इन टॉपिक्स देख सकते हैं। ये आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत, दिस इज वेरी इजी टू यूज, ये बहुत इजी है यूज करना। आपको बस यहाँ पर ये मीनिंग पता होनी चाहिए, बहुत सारी ऑप्शंस है इसमें, एंड आप ये सारी ऑप्शंस को यूज करके अपने पेपर के अंदर आप इसको डायग्राम्स वगैरह को बना सकते हो, है ना। तो दैट मेक्स आपका जो पेपर है दैट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो जैसे अब ये थीमेटिक मैप है, तो ये आई हैव डेवलप दिस, सो ये सारे के सारे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एज इट इज, यू कैन पुट इन टू योर पेपर। लेट मी टेक यू टू दिस, ये PNG फाइल खुल गई, कैन यू सी टू दिस। सो दिस इज द फाइल दैट हैज इमर्ज एंड यू कैन पुट दिस इन टू योर पेपर, राइट। सो इट विल मेक मोर इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें, ये थीमेटिक, इसमें ना टाइम स्लाइस वगैरह डालना पड़ेगा। इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, इसमें लुक एट दिस, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, है ना, 2011 to 19, 20 to 21, 22 to 23। तो ये बता रहा है कि दीज आर द कीवर्ड्स, इस टाइम पे ये कीवर्ड्स और इस टाइम पे ये कीवर्ड्स। सो लाइक दिस, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ थीम्स का, राइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो साइटेशन नेटवर्क, आई डोंट नो, चलो शायद। लुक एट दिस पर्सन, इस इतने लोगों के साथ कोलैबोरेट किया इस पर्सन ने। ये जो रेड कलर है, ये डिफरेंट कलर्स है ना ये। तो ये this is one, these three people are one, these two are one, these three are ones। so इसमें बेसिकली जब हम बिब्लियोशाइनी या वॉस्फियर का यूज़ करते हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो हम मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हो इन सारी फाइल्स को, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लुक एट दिस, ये सारी फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन पुट दिस इनटू योर पेपर, राइट। एंड बस उसके बाद आपको उसका एनालिसिस ही लिखना होता है, बाकी नथिंग एल्स। सो दिस इज व्हाट इट इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आया?
Yes. Yeah, madam. Yes, ma'am. Can I say it like something like this? हाँ जी, सबसे पहले हमें वो जो आर स्टूडियो है वहाँ पे हमें जो आपने कमांड बताया है, मैं सारा कुछ आपको आई शेयर इट विद यू, डोंट वरी। मैं जितने भी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन, डेफिनेटली आई विल सेंड इट आर टू यू। स्टूडियो में आपने जो कमांड बोला वो लिखेंगे, फिर बिब्लियो शाइनी में जा करके वो जो रॉ फाइल है एक्सेल की सब भेज दूंगी मैं सर आपको, एवरीथिंग विल वो हम अपलोड करेंगे, जी। उसके बाद जो हमें जैसे भी जो भी ग्राफ चाहिए हाँ जी, जो इसमें अवेलेबल है Bibliometric analysis में we should write it only explanation. Am I right, ma'am? यस यस, विद द ग्राफ हेल्प ऑफ वगैरह द अपने आप आ ग्राफ। जाएगा, उसमें हाँ खाली हाँ, एनालिसिस पार्ट लिखना है। जी 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 जी, बिल्कुल जी। मैं आपको इसका पेपर भी भेज दूंगी, राइट। एंड मैं एक एक चीज आपको, जितने पेपर्स मैंने यूज किए हैं, जो पीडीएफ फाइल्स भी, पीडीएफ पेपर्स भी मेरे पास हैं, सारे मैं आपको आई सेंड इट टू यू, बट वो कल तक भेज पाऊंगी। जस्ट गिव मी 2 days नो टाइम, इशू, है ना। सो आई सेंड इट टू यू बाय टुमारो, बट मैं Will you भेज send जरूर it दूंगी। to WhatsApp only, ma'am? सर विल सेंड यू थ्रू, आई डोंट नो सर कैसे भेजते हैं। भोलानाथ सर, आर यू देयर? Yes, ma'am. How are we going to send to the participants? Ma'am, we will post it in the WhatsApp group itself. Acha, fine, Okay, fine. thank you. Thank you, sir. We'll do that. Ma'am, can you tell briefly difference between SLR and meta-analysis? Ma'am, I am not added in any WhatsApp group. I don't know. Have I been Ma'am, missed I from too, any ma'am. WhatsApp? I too, ma'am. There is No no problem. WhatsApp group I'm added Molana in. sir, even I too am so not needed. You know. Yeah, I'm yeah, not ma'am. that Ma'am, level. what we I will won't do, be So a part of we'll WhatsApp group. one minute. If any material has been shared till now, I have not received it then. Exactly, same here, same here. Not till now. We have not No, shared any yeah. material Okay, till okay. now. So Don't what worry. we'll do, we'll post in the WhatsApp as well. No, we'll send it through email also to all the participants. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that will be fine, sir. Okay, sir. That will be fine, sir. Fine. Anything else? Meta-analysis, can you just differentiate, ma'am? Yes. सर एक्चुअली जो मेटा एनालिसिस होता है, उसके अंदर आप बेसिकली जो ये पेपर्स एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना, उसके अंदर से जो, जैसे जो उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स लगे हैं, जैसे उसमें रिग्रेशन लगा है, उसके अंदर जैसे कोरिलेशन लगा है, उसके ऊपर आप काम करते हो, उसके ऊपर आप वर्क करते हो और उसका एनालिसिस करते हो। जो टूल्स एंड टेक्निक्स में जो उसमें टेक्निक लगी हुई है, जैसे उसमें रिग्रेशन है या फिर कोरिलेशन लगा है, उसके ऊपर आप जाकर एनालिसिस करते हो, वो आप अपने पेपर में शो करते हो कि हाउ वाज द रिजल्ट्स, उसका रिग्रेशन वीक था, स्ट्रॉन्ग था, कुछ उस तरह से रिजल्ट्स निकालते हो, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मेटा एनालिसिस। और एसएलआर को मैंने बताया ही है कि सिस्टमैटिक लिटरेचर को आप सिर्फ पेपर्स का रिव्यू, मतलब ये जो मैंने आपको सारी टेक्निक्स बताई है, आई होप द एसएलआर पार्ट इज क्लियर। मेटा एनालिसिस में उसके टूल्स पे जाके उसमें, हाँ, तो इसमें मेटा एनालिसिस में उसमें रिग्रेशन वगैरह पे जाके आप उस पे एनालिसिस करते हो। ओनली ये जो इसमें रिग्रेशन और ये टेक्निक्स जो लगी होती है ना उसमें, उसके ऊपर एनालिसिस करना, दैट इज अ मेटा एनालिसिस। वो आपको ना ऐसे नहीं इतना पता लगेगा, वो जब आप कोई वर्कशॉप करोगे ना तभी उसमें Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Understood. क्लैरिटी आता है। जी जी। Okay, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. हाँ जी शेयर। Yes, ma'am. बताइए। Actually, I said you that I have tried the SLR. I don't know whether it is a systematic or semi-systematic. I can't categorize. Systematic literature review. Yeah, but what way I have done, I'll just tell to you in a short. I have firstly written the. अच्छा, एक minute Shiva, I'll take your query, just give me a minute. So Yes. my request to all the participants before they leave this group right now, so it is like we are conducting in Chandigarh University, we are conducting offline, मैंने कल भी बताया था आप सबको, but still I'm telling you that we are conducting an offline session on bibliometric and SLR. So उसमें it will be of 5 days. So what our point is, like, we are going to get the paper done there itself on SLR. ये it will be the USP of this is because we have a Scopus database and we have a Web of Science database. So what we will be doing is we will be
helping you. You come with the topic, we will be helping you to extract the papers from the Scopus database and develop a paper. और मैं खुद आपको एक पेपर भी डेवलप कराऊंगी, एडीयू मॉडल भी सिखाऊंगी और वहीं पर आपको पेपर भी hands on करवाऊंगी. So this is what the theme of my workshop is, and that is from 26th June to 30th. I'll post this on the WhatsApp group as well. Accommodation will So be all this- available. Accommodation. Yes, If we yes, attend the accommodation will be available. Yeah, where it will be Yes, available yes, in the university or outside? in the university, both, whatever you want. If you want in the university, it will be provided in the university. Outside the university also we can do that. That is not Okay, an issue. but how we will be? It will be payable, no? We will have to pay for the stay. Yes, Fatima ji. You have to pay for it. Ma'am, You can tell to my WhatsApp group. I'll share my WhatsApp group number as well onto this. मैं अभी है ना, ये जो ग्रुप बना हुआ है इसी में You have created the WhatsApp group. हाँ, उसी में मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर करूंगी. तो अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्कशॉप, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ऑफलाइन, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, राइट? Okay. When will be the workshop? You said 26th of 26th June to 30th June. Okay. Yes. 30th. Okay. But I want to appreciate you, ma'am, Shalini ma'am. It was a really Thank you nice very much. session. It was a very nice session. A different you, Anjali. information that you already know, but still the more information I will get from you. So it was a very Thank you nice very session. And I want to invite you to my institute also for such a Thank you so much. Yeah, I'll share my ma'am, number on the WhatsApp ma'am, group. Shalini ma'am, even I would like to congratulate you. It was a wonderful Thank you. session. Thank you very much, ma'am. Thank you And very much. though it was the topic was systematic literature review, and explanation was also systematic, ma'am. It was quite systematic. Thank you so much. One by one, step by step, you explained everything. Wonderful, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank Just Looking attending, forward to see just you for attending the the session offline. also, we can write a paper. Easily. हाँ जी. Yes. Yeah. Attending the session also, we can write a paper. Yes, So, ma'am. thank you very much, ma'am. Yes. I'll make sure about this that जो भी मेरी होगी वर्कशॉप उसमें मैं आपको पेपर लिखवा दूंगी. This is what we can do that. Ma'am, we just have a humble request, ma'am. Please add us in the WhatsApp group because we have lot of queries. So we need to ask, ma'am. We need to cross-verify it. Okay, so you can, sir, what should we do, Bholanath sir, for adding them into Yes, ma'am. Yes. this thing? I am यहीं पर also ही, not added in the Ma'am, WhatsApp what group, so what I'll request, you can just type your mobile number in the chat box. Okay. So let everyone take it, and they can post personally, because this group will collapse. Okay, this is only for the workshop. Maybe once we send the certificates to all of them, so this group will collapse. when the certificates will come, sir? That's what, by this weekend, latest by Sunday evening, all the certificates will be sent through email. Okay. On the first day, it was difficult for me to enter, so I couldn't enter. No, there is some problem in the WhatsApp group in the setting Yes, itself. I changed once. After that, it is not accepting. I don't know. Maybe some problem is there. Okay. Sir, is that possible? अगर हम जो वर्कशॉप का ब्रोशर है वो भी सेंड कर पाए? ये this is my number. I have written here in the message box. This Yes. is Dr. Shalini Agarwal, and this is my number 9466 Correct. Ma'am, can you take my inquiry kindly? हाँ जी शिवाजी बताइए बेटा. हाँ मैम, मैंने जो SLR किया है वो मैंने पहले ईयर ऑफ द पेपर, फिर उसके बाद ऑथर नेम, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, देन जर्नल नेम, पब्लिशर एंड देन ऑब्जेक्टिव. एक मिनट, ऐसे करते हैं. व्हाट वी कैन डू इज, आप मुझे इसके बाद आराम से मिलो एंड वी विल हैव अ गूगल मीट. आपके पास मेरा नंबर है, सो यू कैन व्हाट्सएप में, है ना, एंड मैं आपको आराम से आपकी क्वेरी को हैंडल कर दूंगी. डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली हैंडल योर क्वेरी. फाइन. Ma'am, I request you to please keep conducting such workshop and offline mode also, because unfortunately maybe in the June session I will not be able to attend the workshop because of these family engagements, but I will definitely look forward to for more offline workshops, and I would love to attend in future, because this has been very helpful,
Thank you so much. Ma'am, if you are conducting any workshop in future, kindly let me know, ma'am, via WhatsApp group or some other group, ma'am, please. Because we attend your श्योर workshop. श्योर श्योर बट हम कैसे कांटेक्ट कर पाए कनेक्ट कर पाएंगे आई डोंट नो मैम आप WhatsApp भोलानाथ सर अगर हम ये ग्रुप अगर अभी ना डिलीट करें फॉर द टाइम बिंग इज दैट पॉसिबल फॉर अस Ma'am, generally what we do lot of programs. So individual workshop, no, we create group. Now once the program is over, within Over, we 1 delete week's it. time, we collapse it and we request them to join our MTC Global WhatsApp group. Okay, so we have separate for Acha, MTC okay. Global. There all Acha, can acha, join, and all the messages and all circulation, and there is no restriction. Okay, anyone can Okay, post that's anything. great. That's So great. that link I'll provide in this group so that those who are interested they can join our parent group. So all of us can be there. There are so many other academicians also. Yes, sir, that's That would be fine. of That's great help, great. sir. Yeah, that is a great initiative. Yes. Yeah. We are looking forward for that, sir. Thank you, ma'am. Yeah. थैंक यू So. तो इसी ग्रुप में आप शेयर करेंगे सर भोलानाथ Yes, सर ma'am. Yes, ma'am. I'll do it right now. Okay, so beforehand only they can join. No problem. मैं भी नहीं आई एम आल्सो नॉट देयर इन You are also not there. You also please kindly join. यस Okay, यस so no problem. Perfectly fine. और जो लोगों के पास नहीं है सर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू अगर आप इस मैसेज बॉक्स में भेज पाए इधर वो पॉसिबल होता है ये लिंक शेयर करना आई थिंक आप मेल पे अपना डाल के और इधर व्हाट्सएप ग्रुप का वो लिंक शेयर कर सकते हो सर इधर I'll do that. I'll do that. जो लोग नहीं है सो प्लीज डोंट लीव राइट नाउ एंड जस्ट वेट फॉर सर इज शेयरिंग द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हियर एंड यू कैन ज्वाइन दैट ठीक है ना सर Okay, ma'am. Okay, we will wait, ma'am.